انجام دہی کا کام سیاست ہے۔ لوگوں کے معاملات کیسے سدھارے جائیں، سماج کی تعمیر کیسے کی جائے، وہاں کا تعلیمی نظام کیسے ہونا چاہیے، لوگوں سے کس طرح سے تعلقات ہونے چاہیے، اور پورا جو انسانی معاشرہ اور انسانی ماحول ہے وہ کس طرح سے تیار کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اس تعلق سے کہا گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سارا کا سارا کام بنی اسرائیل کے درمیان انبیاء اکرام کرتے تھے، اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ جتنا بھی کام ہے، یہ امور کی انجام دہی کا کام، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیائی کام قرار دیا ہے۔ یہ مبارک کام ہے، یہ عظیم کام ہے، یہ انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا کام ہے، انسانوں کے معاملات حل کرنے کا کام ہے، انسانوں کو انسانیت سے روشناس کرانے کا کام ہے کہ شیطانی قوتیں اس میں انتشار، اس میں خلفشار نہ پیدا کر سکیں۔ یہ وہ کام ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دے رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے نزدیک سیاست کی حیثیت کیا ہے، ہمارے نزدیک سیاست کی بنیادی حیثیت ہے۔ میں اس سوال کو دوسرے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ فرعون کے حوالے حکومت دے دیجئے اور پھر اس سے عدل اور انصاف کا مطالبہ کیجئے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہمارا پورا رویہ کیا اس بات کی شہادت نہیں دیتا ہے کہ ہم فرعون کو اقتدار عطا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مسجد بچاؤ، ہمارا پرسنل لا بچاؤ، ہمارے مدرسوں میں مداخلت نہ کرو، ہمیں اردو دے دو، ہمیں وندے ماترم کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو گویا کہ ہم کو ایک مطالباتی گروہ ہم بن گئے ہیں، ہمارے یہاں انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ رد عمل کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن جب ہم امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں، اس امت مسلمہ کو تشکیل کس نے کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ کسی دانشور نے بنایا ہے، کسی فلاسفر نے بنایا ہے، کسی نام نہاد سیاسی لیڈر نے بنایا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برپا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی ترکیب اور اس کا اسٹرکچر بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا نصب العین طے کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی بنیادیں طے کی ہیں۔ تو اس کا جو سیاسی نصب العین ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کیا ہے۔ تو اگر ہم یہ رہنمائی مارکس سے حاصل کریں، میکیاولی سے حاصل کریں، گوئٹے سے حاصل کریں، گاندھی اور نہرو سے حاصل کریں، تو کیا یہ رہنمائی ہمیں سیاسی رہنمائی مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی۔ اگر ہم فرعون اور نمرود کو اقتدار حوالے کر دیں اور اس کے بعد ہم اس سے عدل اور انصاف کا مطالبہ کریں، کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کام ہو سکتا۔ تو یہ جو امت مسلمہ ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برپا کیا ہے، امت مسلمہ کا ہی نام دیا ہے۔ جس طرح سے سیاست کا لفظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے، اسی طرح سے امت مسلمہ کا لفظ اور یہ اصطلاح قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز فرمائی ہے، ہمارے لیے منتخب کیا ہے، ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس امت کا جو نصب العین ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی۔ تم وہ بہترین امت کہتے ہیں جماعت کو، تم وہ بہترین جماعت ہو جسے نکالا گیا ہے لوگوں کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو اگر یہ جماعت کی شکل میں نہیں ہے، اور اگر یہ جماعت تو ہے، اپنے لیے امت مسلمہ کا نام تو قرار دیتی ہے، لیکن یہ نیکیوں کا حکم نہیں دیتی، برائیوں سے نہیں روکتی، تو یہ اپنے نصب العین سے غافل ہے۔ اور پھر جماعت کیسے بنتی ہے؟ بھیڑ ہو، اس کو مسلکوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا جائے، تو کیا یہ جماعت برقرار رہے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
आमुरुकुम बिखम्सिन बिलजमा वस्समा वत्ता वलहिजरा वलजिहाद बिसबीलिल्लाह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ 5 बातों का। ये कौन कह रहा है? कोई फिलासफर नहीं कह रहा है, ये अल्लाह के रसूल ने कहा है। वो 5 बातें कौन सी हैं? जमात का, समा और ताहत का, हिजरत का और अल्लाह की राह में जिहाद करने का। तो जमात से रहने का की जो जिम्मेदारी है, कि जो शख्स अपने को ये कहता है कि वो कलमे तैयबा पर ईमान रखता है, उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो जमात की हैसियत में रहे। और जमात बग़ैर क़यादत के नहीं बनती, जमात बग़ैर नज़रिया के नहीं बनती, जमात बग़ैर फ़लसफ़े के नहीं बनती, जमात बग़ैर अक़ीदा के नहीं बनती, और जमात बग़ैर समा और ताहत के नहीं बनती। जमात के भी तकाज़े हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो इस उम्मत को एक जमात की हैसियत से बर्पा किया है और इस उम्मत का एक नस्बुल ऐन करार दिया है कि इस उम्मत का काम यह है कि नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। हुक्म कैसे आप दे सकते हैं? कमज़ोर होंगे तो हुक्म दे सकते हैं, आप लाचार होंगे हुक्म दे सकते हैं, बल्कि हुक्म आप तभी दे सकते हैं जबकि आपके पास कुव्वत हो, आपके पास ताकत हो, आपके पास इक़्तिदार हो, आपके पास पावर हो, आपके पास हुकूमत हो। तो गोया कि आपका जो सियासी नस्बुल-ऐन है वो ये है कि आप इक़्तिदार में आएंगे, आप पावर में आएंगे, आप हुकूमत में आएंगे और हुकूमत की ताकत के ज़रिए से नेकियों का हुक्म देंगे और बुराइयों से रोकेंगे। और ये हुकूमत और इक़्तिदार तभी आपको मिल सकता है जबकि आप जमात की हैसियत से बरपा, आप एक जमात बन जाएं। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा बल्कि खलीफा होंगे। मतलब वो ये पूरी उम्मत एक जमात की हैसियत में होगी और इसका एक लीडर होगा। मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि आपका कौन सा लीडर है? अल्लाह के रसूल मक्का में थे, तमाम अहले ईमान के लीडर थे, मदीना में थे, तमाम अहले ईमान के लीडर थे, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खुलफाए राशिदा तमाम अहले ईमान के लीडर थे। इसीलिए उनको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता था। लेकिन आपका अमीरुल मोमिनीन कौन है? इलाहाबाद की सतह पर मुसलमानों का लीडर कौन है? यूपी की सतह पर मुसलमानों का लीडर कौन है? और फिर लीडर कौन बन सकता है? हर कोई लीडर बन जाएगा। तो यहां पर एक सवाल और है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि क्या हर वो कोई शख्स जो अपनी क़यादत का दावा करे वो लीडर बन सकता है? तो अब तक जितनी भी मुसलमानों की सियासत, चूँकि मुल्की तनाजुर में बात हो रही है, वो कम्युनल के अंदाज में ही रही है। वो क्यों? क्योंकि जब उसमें नज़रिया की बुनियाद पर आपने सियासत नहीं की, आपका जो नज़रिया है वो कुरान की रोशनी में तमाम इंसानों को ख़िताब करता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। ऐ लोगो, मैंने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हारे शूब और कबाइल बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। लेकिन आपकी सियासत मुतालिबाती सियासत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के मसाइल के लिए है। लेकिन अल्लाह ताला आपको जो नस्बुल-ऐन जिस मनसब पर फायज करता है कि आपकी सियासत आम इंसानों के लिए होनी चाहिए। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर मुसलमानों के अलावा जितनी कौमें हैं उनके लिए इस्लाम का और मुसलमानों का क्या प्रोग्राम है? मुलायम सिंह का तो प्रोग्राम है आपके लिए, सोनिया गांधी का प्रोग्राम है मुसलमानों के लिए, मोदी जी का है प्रोग्राम मुसलमानों के लिए, लेकिन किसी मुस्लिम लीडरशिप का प्रोग्राम इस्लाम के नाम पर गैर मुस्लिमों के लिए क्या है? तो सिर्फ आप अपने दायरे में महदूद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहता है कि आप इंसानों के लिए निकलें, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है। और जब तक अदल की बुनियाद पर हुकूमत और इक़्तिदार कायम नहीं होगा, और अदल की बुनियाद पर हुकूमत और इक़्तिदार तभी कायम हो सकता है जब उसको अहले अदल कायम करें, इंसाफ के अलंबरदार उसको कायम करें,
तभी समाज में और माशरा में इंसाफ कायम हो सकता है, अदल कायम हो सकता है, सुकून कायम हो सकता है, लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहलू हमारे सामने वाज़ेह रहना चाहिए कि ये उम्मत अपने अंदर महदूद नहीं है, बल्कि इसे निकाला गया है लोगों के वास्ते। इस बात की जिम्मेदारी भी इसके ऊपर है कि इस सोसाइटी के अंदर, इस माशरे के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं तो उन बुराइयों के खिलाफ ये उठ खड़ी हो, लड़े। किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है तो ये आवाज़ बुलंद करे। जुल्म ख्वाह ब्राह्मण के ऊपर हो रहा हो या शूद्र के ऊपर हो रहा हो या छत्री के ऊपर हो रहा हो, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा की आपकी जिम्मेदारी है कि उस मजलूम की हिमायत में आप उठें। आपके पास वो प्रोग्राम होना चाहिए, इंसानी बुनियादों पर प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि जो इस्लामी सियासत है, जो मुस्लिम सियासत है, वो इंसानी सियासत है, वो गिरोही सियासत नहीं है, वो तफरीकी सियासत नहीं है, वो अलहदा करने वाली सियासत नहीं है, बल्कि इंसानों को इंसान बनाने का प्रोग्राम है इस्लाम के सामने कि तमाम इंसान इंसान बन जाएं, तमाम इंसान अल्लाह के खलीफा बन जाएं। जो अल्लाह से ज़्यादा डरेगा सोसाइटी में, ख्वाह वो किसी भी सतह का हो, चाहे वो निचली सतह का हो या बुलंद सतह का हो, वो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा अजीम है, सबसे ज़्यादा मुकर्रम है, सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो हमारे सामने कई सवाल पैदा होते हैं कि हमारा नज़रिया क्या है। हमने अपने को कम्युनल होने का खुद सर्टिफिकेट अपने आप दे रखा है। मसलन मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब आप सियासत के मैदान में कोई बात कहेंगे तो आपका मुस्लिम भाई खड़ा होकर के कहेगा, भाई कुरान और सुन्नत की बात मत करो। आपने कोई बैनर भी बनाया है तो कहेंगे इसमें से इस्लाम और मुसलमान निकाल दो, वरना यहाँ पे जो अक्सरियत है वो गैर मुस्लिम है और वो इस पर नाराज़ हो सकती है। तो हमें थोड़ा सेकुलर बन करके रहना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है कि हिंदुस्तान के कार्ल मार्क्स कम्युनल नहीं है, हिंदुस्तान के लिए लेनिन कम्युनल नहीं है, हिंदुस्तान के लिए माओ कम्युनल नहीं है, हिंदुस्तान के लिए मैकियावेली कम्युनल नहीं है, बल्कि वो रिलेवेंट है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नौज़ुबिल्लाह कम्युनल है, फ़िरक़ा वाराना है। तो अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई ऐसी तालीम नहीं दी है कि गैर कौमों के साथ नाइंसाफ़ी की जाए, जुल्म किया जाए, तो हिंदुस्तान और पूरी दुनिया इस बात के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सियासत के मैदान में भी पेश किया जाए। एक और सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम मुकम्मल निज़ाम हयात है, यानी तमाम तरह के उमूर की रहनुमाई हमें इस्लाम से मिलती है, तो क्या सियासत के मैदान में कोई रहनुमाई इस्लाम नहीं करता? क्या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इस्लाम के पास नहीं है? सिर्फ कम्युनिज्म के पास है, सिर्फ कैपिटलिज्म के पास है, सिर्फ सोशलिज्म के पास है। ये सारे नज़रियात चल सकते हैं, लेकिन इस्लाम का सियासी नज़रिया नहीं चल सकता, जिसके मानने वाले हिंदुस्तान में आप दावा करते हैं कि 15 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ तक हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि 30 और 40 करोड़ तक हैं। इतनी बड़ी क़ुव्वत, इतनी बड़ी इज्तिमाई क़ुव्वत जिसके मानने वाले हों, वो उनको अपने नज़रिए पर यकीन ना हो, वो एहसास कमतरी का शिकार हो। क्या ये अलमिया नहीं है कि एक मुसलमान हो और वो सोशलिस्ट के बैनर के तले सियासी काम कर रहा हो, एक मुसलमान जैसा नाम हो और वो कम्युनिज्म के नाम पर वो सियासत में सरगर्म हो, एक मुसलमान हो लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, जो मगरबी डेमोक्रेसी है, जो मगरबी सेकुलरिज्म है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके नाम पर वो काम कर रहा हो। तो ये इस्लाम को तो हमने खुद छोड़ दिया और हमें शिकायतें हैं औरों से। हमने इस्लाम का सियासी फ़लसफ़ा और सियासी नज़रिया लोगों के सामने नहीं पेश किया और हमें शिकायत है दूसरों से। एक और तरीक़े से हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि 1947 के बाद मुसलमानों की सियासत क्या रही है। पहली चीज़ कि जितने भी बड़े बड़े इश्यूज़ रहे हैं मुसलमानों के, मुस्लिम सियासतदानों ने और जिन लोगों ने, गैर मुस्लिम सियासतदानों ने
जिन्होंने मुसलमानों की सियासत की है, उसमें मुसलमानों